हाँ, जैसे मैंने पहले बात की कि प्रोसेस इज गोइंग टू बी द सेम, बट द डिफरेंसेस आर देयर। सबसे पहले तो जब हम बात करेंगे इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन के हवाले से बात करेंगे। मैं आज के लेक्चर में कल के लेक्चर्स के भी हवाला जात दूंगा कि वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे क्या होगा। हमने जब कल प्रोकैरियोट्स में बात की थी उसमें यही बात हुई थी कि देयर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन, जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन का नाम दिया था, ओरी पॉइंट का नाम दिया था। और वहाँ से जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है एंड देन इट प्रोसीड्स फर्दर। इट इज़ डिफरेंट इन केस ऑफ यूकेरियोट्स। रीज़न क्या है इस डिफरेंस की? साइज ऑफ द डीएनए। प्रोकैरियोट्स में जो साइज है डीएनए का, दैट इज अबाउट 3.6 मिलियन बेस पेयर्स, whereas in case of eukaryotes we come up with 3 billion base pairs. So this is quite a big number of the DNA size. और अगर हम इसको एज्यूम कर लें जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स कि एक ही पॉइंट है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी for complete DNA to gets replicated, then it will take around 35 days to complete the DNA replication, but this actually does not happen. आप लोगों ने सेल साइकिल में पहले पढ़ा होगा कि सेल साइकिल टेक्स अबाउट 24 आवर्स, और उसमें भी अगर हम स्टेजेस की बात करें तो एस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है, दैट टेक्स अबाउट 6 आवर्स. सो इफ डीएनए रेप्लिकेशन completes in 6 hours, that is an indication or that tells us that there are more than one point from where the replication starts. So, if we look at this picture, this black color dot, this black color dot, and this one, these black colored lines, not dots, these black colored black lines, they basically shows us that DNA is replicating at these points. और अगर इन पॉइंट्स को डायग्रामेटिकली शो किया जाए तो दीज आर दी सिचुएशंस कि यहाँ पे एक ये रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है पॉइंट की, एक यहाँ पे पॉइंट है रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है, एंड सो ऑन. So that indicates that there are multiple points from where the replication can start. In other words, मैं ये बात कह सकता हूँ कि यूकेरियोट्स में जीनोम जो है रेप्लिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. नॉट फिजिकल डिवीजन, that is just a theoretical or hypothetical division, and each segment has its own point from where the replication can start. We call this particular segment as a replicon. You can see here that eukaryotic genome is divided into multiple segments, and each segment has its own point from where the replication can start, and this is termed as a replicon. So keep in mind the definition of replicon, क्योंकि आगे चल के हमें इस तरह की कुछ टर्म्स आएंगी, so you need not to get confused. So replicons are the segments of eukaryotic DNA which has their own replication initiation point. When we look at the size of these replicons, normally replicons are 40 to 100 kilobases in length. स्पेसिफिक हैं 40 किलो बेसिस के यीस्ट में हो सकते हैं और या फ्लाइज में हो सकते हैं, whereas 100 किलो बेसिस the maximum length is found in animal cells. In case of human being, the replication begins at 10,000 to 100,000 different replication origins. That means we have multiple replicons in the eukaryotic genome. अगर हम human की बात करें, then human cell has multiple replicons, and at any given time, from 10,000 up to 100,000 replicons can be actively replicating, which is only 10 to 15% of the replicons. That means हम suppose कर लेते हैं कि अगर एक DNA में 100 के करीब replicons मौजूद हैं, so do you think all the 100 replicons will start replicating at the same time? If 100% replicons they start replicating at the same time, then the length of S phase should be 1 hour.
but experiments have shown that this is up to 6 hours. S phase completes in 6 hours. So we have seen that the time required tells us that at any given time, out of 100% replicons, only 10 to 15% replicons are replicating. So that means अगर आपके पास theoretically 100 जो है वो replicons हैं, तो only maximum जो है 10 से 15 replicons हैं, they will be replicating at any given time. उसके बाद next point ये आ जाता है कि which replicons will be replicating. Those which are neighboring, which are present next to each other, और एक रेप्लिकॉन जो है वो 5 प्राइम एंड के ऊपर है वो रेप्लिकेट कर रहा है, दूसरा 3 प्राइम एंड के ऊपर है वो रेप्लिकेट कर रहा है. सो द आंसर इज द नेबरिंग रेप्लिकॉन्स will be replicating at any given time. उसके बाद अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, जो कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन या डीएनए दो किस्म का होता है. एक हेट्रोक्रोमेटिन कहलाता है, दूसरा यूक्रोमेटिन कहलाता है. एंड यू हैव एन आइडिया अबाउट द ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी के हेट्रोक्रोमेटिक डीएनए इज हाईली कंडेंस्ड एंड इट इज नॉट एक्टिव ट्रांसक्रिप्शनली. यूक्रोमेटिक डीएनए इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. सो जब हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो यूक्रोमेटिक रीजन्स जो हैं दे रेप्लिकेट फर्स्ट, वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिक रीजन्स दे रेप्लिकेट टुवर्ड्स द एंड ऑफ एस फेज. That indicates they replicate towards the end of the replication. Then we talk about the rate of replication. That means how many nucleotides are being added per minute during replication. In eukaryotes, it is relatively slow rate. 2000 nucleotides are polymerized per minute, whereas in case of prokaryotes, the rate was quite much faster. Around 50,000 base pairs or 50,000 nucleotides were added at any given minute. So I hope up till now you got the information. Any question if you have? सर आपने कहा कि जो एस फेज है वो 6 आवर्स में कंप्लीट होता है, तो उधर 1 लिखा है तो वो नहीं ना, 6 आवर्स लिखना है ना? जी, मैंने वहाँ पे 1 डेलिबरेटली लिखा है कि अगर 100% रेप्लिकॉन्स रेप्लिकेट करें एट द सेम टाइम देन इट विल टेक 1 hour. जी But सर. practically 10 to 15% they are replicating at any given time. So that is the reason S phase lasts for 6 hours. वहाँ पे आप ये last point आप वहाँ पे खुद ऐड कर लीजिएगा. ओके सर, ठीक है? थैंक Okay. जी सर. Then we come to the next point. Like prokaryotes में हमने बात की थी, there is ORI point, origin of replication initiation. Is there any such sequence present in eukaryotic DNA, or the eukaryotic DNA starts replicating from any point जहाँ से उसका दिल करे वहाँ से replication start करते हैं? For that particular purpose, there were some experimental studies done using yeast. और yeast में जो उनके DNA में, yeast DNA में there was a sequence जिसको बाद में नाम दिया गया ARS sequence, that is referred as autonomous replicating sequence. Experimental studies have shown कि अगर ARS को आप yeast में से निकालें और लेके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में, यूकैरियोटिक DNA में आप इसको इंसर्ट कर दें, that particular DNA will start replicating automatically, प्रोवाइडेड कि आप उसको सारी मशीनरी प्रोवाइड करें, आप उसको DNTPs प्रोवाइड करें, पॉलीमरेज प्रोवाइड करें, जितनी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करें. और अगर आप यीस्ट में से ARS सीक्वेंस को निकाल के बाहर रखते हैं, देन यू ऑब्जर्व वेदर द रेप्लिकेशन occurs or not, then there will be no replication. These two experimental evidences suggest that the ARS, autonomous replicating sequences, are present in the eukaryotic yeast cell, and they are responsible for automatic or autonomous replication of the DNA, just like ORI points which are present in the prokaryotes or bacterial cell. And now if we look at the sequence of ARS, इसमें कौन से nucleotide sequence हैं, whether they are similar, they are different, then we come up with the sequence of 11 base pairs, which functions as a binding site for many proteins involved in the onset of this replication. इस multi protein complex को
हम नाम देते हैं ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। वो सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसको रिकग्नाइज करने के लिए मल्टीपल प्रोटीन्स की ज़रूरत पेश आती है, उसको एक कॉम्प्लेक्स की शक्ल में नाम देंगे, तो हम उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। देन व्हाट हैपन्स इन एक्चुअली यूकेरियोट्स, ये तो मैंने यीस्ट की बात कर दी। उसके बाद जब हम बात करते हैं डेवलप्ड और हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की, तो यूकेरियोट्स में only these sequences, the nucleotide sequences are not only responsible for the initiation of replication. There are many epigenetic factors which are not related with the DNA, but these epigenetic factors are responsible for decision making कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। आप वो एपिजेनेटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ nucleosomes, histone octameres in the eukaryotic DNA, which is actually not present in prokaryotic DNA. So this is another difference. When we talk about eukaryotic DNA, हमें ये भी सोचना पड़ता है कि DNA तो अटैच है, टाइटली बाउंड है with the histone octamer. So how it will be decided? This is the point of replication initiation. So these factors, the presence of histones, the nucleosomes, DNA methylation, degree of supercoiling, all of these factors, these are referred as epigenetic factors, which are involved in identification of the point where from the replication will be started in a replicon. So this was about ARS and how the replication initiates, which epigenetic factors can influence the initiation. If you have any question, you can ask. This picture is nothing. This is the same picture from another book, that how the replicons they are going to initiate. And as we spoke, that replication is bidirectional. This replication bubble will move in both the direction, and there will be a stage जब ये दो independently replicating replicons they will fuse together, and ultimately they are going to make the two daughter DNA strands, as you can see over here. एक्सक्यूज मी सर, सर मुझे जी, स्लाइड शो नहीं हो रही। आपको स्लाइड शो नहीं हो रही? आप देखें, मेरा नाम 2 दफ़ा लिखा होगा, जहाँ पे नीचे लिखा होगा ना योर प्रेजेंटेशन, आप उस चॉइस को पिन करें तो फिर आपको स्लाइड शो होगी। सर किया है मैंने, दोबारा कॉल कट करके भी दोबारा रिजॉइन किया है पर नहीं हो रहा। दिस इज सरप्राइजिंग। और किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है जी, स्लाइड विजिबल ना हो? नो सर, स्लाइड एक जगह। नो सर, हमने तो वो ओके, लेक्चर आपका ओपन किया हुआ जो आपने सेंड किया था ना, वहां से देख रहे हैं। चले सर वहाँ ये से जो देखें। 11 बेस पे का सीक्वेंस है ARS, ये जहाँ पे इनिशिएशन स्टार्ट होनी है वहां पे जाके बाइंड होगा तो वहां से नहीं रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट होगी। नहीं, बाइंड नहीं होगा, ऐसे नहीं है। ये डीएनए का सीक्वेंस जो है ना, जब हम उसको देखते हैं ना, तो वहाँ पे जो एक सीक्वेंस है 11 बेस पेयर का ऑलरेडी प्रेजेंट है। दिस इज अ सीक्वेंस वेयर द प्रोटीन्स कम एंड बाइंड। अगली पिक्चर्स में कुछ आएगा कि कौन सी प्रोटीन्स ओके होती सर, है, दे विल कम एंड बाइंड हियर। और आई विल सजेस्ट कि जो मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की हुई है ना, आप उसको देखें, बिकॉज उसके ऊपर मैं कुछ राइट अप भी करता हूँ और मार्किंग भी करता हूँ। अगर आप उस लेक्चर को देख रहे हैं इट्स गुड, लेकिन फिर हो सकता है आपको जो है ना अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मसला हो। और जिन्हें जो है सर वो वो यहाँ से 3 नीना शो होती है इसलिए। ओके, तो जिन लोगों की जो है वो स्लाइड्स जिनको शो नहीं हो रही, आई वुड सजेस्ट कि वो दोबारा से ज्वाइन कर लें, फिर उनको शो हो जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि जहाँ पे सर इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू होगा वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सर ये ओआरसी का एक दफा फिर बता दें, जो 11 डिस्पेयर है वहां से शुरू होगी रेप्लिकेशन। अभी आगे चल के आएगा, हाँ जी, अभी आगे चल के ना डायग्रामेटिकली मैं इसको बताता हूँ कि व्हाट इज दिस। ओ आर सी इज बेसिकली मैनी प्रोटीन्स दे कम टुगेदर एंड दे बाइंड विद द ए आर एस सीक्वेंस। अब उन मल्टीपल प्रोटीन्स को जो है हम एक सिंगल नाम दे देते हैं ओ आर सी, ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिकग्नाइज दिस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन इनिशिएट होनी है। ठीक है, अभी आगे चल के बात करते हैं। ओके जी, देन कम्स
अगेन द सेम फैक्टर्स, हम प्रोटीन्स की बात करेंगे, पॉलीमरेसेस की बात करेंगे और उसके बाद प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स में हमने बात की थी देयर आर 3 polymerases, whereas in case of eukaryotes there are many polymerases. So far 15 DNA polymerases have been identified, लेकिन उनमें से जो है रेप्लिकेशन के साथ जो हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स 5 आर एसोसिएटेड। अब इन 5 को जो है हमने नाम दिया है अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। गैमा पॉलीमरेज को जो है वो बाहर निकाल दिया चाहिए इसमें से, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन, जब रेप्लिकेशन की बात आएगी देयर विल बी प्रूफ रीडिंग आल्सो। सो गैमा पॉलीमरेज इज इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए विद द प्रूफ रीडिंग एबिलिटी। Polymerase delta and polymerase epsilon, they are the enzymes which replicate the leading and lagging strands separately. Now there is the difference. हमने कल जो बात की थी polymerase 3 was involved in replicating both the strands. एक मॉलिक्यूल जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के साथ बाइंड हो जाता था, दूसरा मॉलिक्यूल जो है एंजाइम का वो बाइंड हो जाता था लैगिंग स्ट्रैंड के साथ। यहाँ पे एंजाइम ही डिफरेंट है, वन रेप्लिकेट्स द लीडिंग स्ट्रैंड, द अदर वन रेप्लिकेट्स द लैगिंग स्ट्रैंड। अभी आगे बात करते हैं फर्दर इसके हवाले से। पॉलीमरेज अल्फा is responsible for DNA replication, plus it also acts as a primase. And polymerase beta is referred as a repair enzyme. So repair enzyme है, so there is no proof reading ability. When we look in detail, our अब पिक्चर नहीं है, नेक्स्ट आएगी पिक्चर। ओके, पॉलीमरेज अल्फा मैंने अभी बात की। सबसे पहला जो स्टेप होता है रेप्लिकेशन में दैट इज प्राइमर फॉर्मेशन या प्राइमर सिंथेसिस। सो प्राइमर सिंथेसिस के बाद पॉलीमरेज आता है और उसको एक्सटेंड करता है। कल जो हमने यूकैरियोट्स में प्रोकैरियोट्स में बात की थी कि प्राइमेज प्राइमर बनाएगा, पॉलीमरेज उसको एक्सटेंड करेगा। यहाँ पे इस एंजाइम को प्राइमेज के साथ एसोसिएट इसलिए किया गया है कि प्राइमेज इज वन कंपोनेंट दैट इज वर्क्स विद द पॉलीमरेज अल्फा, और उसके बाद जब पॉलीमरेज अल्फा और प्राइमेज दोनों मिलके जो है वो प्राइमर सिंथेसिस करते हैं। वंस प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड देन दिस एंजाइम कीप्स ऑन एडिंग द न्यूक्लियोटाइड्स, और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। सो मच सो 20 के करीब न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए स्ट्रैंड की ऐड कर देता है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम 20 न्यूक्लियोटाइड्स जब तक ऐड होते हैं उसके दौरान स्विचिंग होती है। पॉलीमरेज अल्फा is replaced by main replicating enzyme polymerase delta and epsilon. So this is a kind of a process that has been initiated. Primer synthesize हुआ, now instead of replacing the enzyme, replication starts, and during this course of 20 nucleotide addition the actual enzymes they come up and they replace the polymerase alpha. Polymerase beta का मैंने बता दिया replicating and the repair enzyme polymerase gamma for mitochondrial DNA. Then comes the difference in delta and epsilon. Delta is a primary enzyme that is involved in DNA synthesis of lagging strand. It is going to bind with the lagging strand and it has 3 to 5 prime exonuclease activity. जैसे कल हमने बात की थी polymerase 3 के हवाले से, it has 3 activities: polymerization, proofreading and exonuclease activity. So all these 3 activities are also present in polymerase delta as well as polymerase epsilon. Polymerase epsilon is basically going to replicate the leading strand. So this is the difference between these two polymerases. ओवरऑल अगर हम बात करें पॉलीमरेज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, अभी सिर्फ हमने 5 के हवाले से बात की है। आई एम गोइंग टू टॉक इन जनरल that all the eukaryotic polymerases, as the name indicates, they extend or they synthesize DNA strand, and the principle will remain same, that the synthesis of new strand is going to be from 5 to 3 direction. Number 1. Number 2, they cannot independently start the polymerization. They need the primer, और जैसे कि कल बात हुई थी, they need the 3' hydroxyl group of pre-existing strand. Then gamma, delta and epsilon,
because these three are involved in replication, so they will be having 3 to 5 exonuclease activity as well as proofreading activity. Whereas three other polymerases or several other polymerases like in N, kappa, L, they have specialized functions uh, which may allow the cells to replicate the damaged DNA. अब अगर हम सिर्फ रेप्लिकेशन के ऊपर बात करना शुरू करें ना, इतना मटेरियल मिल जाएगा, इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि वी कैन टॉक अबाउट ओनली रेप्लिकेशन फॉर मंथ्स. So for up to this point, I'm not going into detail about the enzymes, only 5 enzymes and their functions. If you have any question, you can ask. Otherwise, we will proceed with the proteins. एक्सक्यूज जी. मी सर, डीएनए डाटा के पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो elongation की प्रॉपर्टी है. Elongation की नहीं है, exonuclease activity. एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, अगर कोई गलत जो है रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड बाइंड हो जाता है तो वो उसको रिमूव कर सकता है. इलोंगेशन जो है वो 5 to 3 ही होगी. ठीक है. यस सर. ओके, अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स के हवाले से. अब प्रोटीन्स के हवाले से बात करने से पहले जस्ट रिकॉल द स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन. सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा. लाइक मैं सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को पहले सेपरेट होना है, उसके बाद उन स्ट्रैंड्स को प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद उन स्ट्रैंड के साथ मल्टीपल प्रोटीन्स ने आके बाइंड करना है. देन देयर विल बी एंजाइम अटैचमेंट, और उस एंजाइम को जो है वो अटैच करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए. जैसे कि कल बीटा क्लैम्प की, गैमा क्लैम्प लोडर की बात की थी. ऑलमोस्ट everything is required जिनकी हमने कल बात की थी, but name is going to be different. Let's see what are the names. ORC proteins, जैसे अभी बात की, origin recognition complex proteins, they are going to recognize the point from where the replication has to start. मैंने कल ओरी पॉइंट की बात की थी, उसके साथ जो है एसोसिएटेड प्रोटीन की खुद बात नहीं की थी. अदरवाइज ओरी पॉइंट इज रिकग्नाइज्ड बाय अ प्रोटीन विच इज नोन एज डीएनए. फिर कल हमने बात की थी, या पहले उससे बात की थी, गायरेज की. टाइप टोपोआइसोमरेज में मैंने बताया था कि गायरेज कहते हैं प्रोकैरियोट्स में, whereas topoisomerase 1 और topoisomerase 2 in eukaryotes, they are responsible to remove the supercoils. Then there is a protein which is called as NCM. This is basically the helicase protein. हमने इसको प्रोकैरियोट्स में हेलिकेस के नाम से देखा था. सो हेलिकेस को जब देखेंगे, दिस इज एन MCM और दिस इज गोइंग टू बी अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. 6 से 6 प्रोटीन्स वाले बन आएंगी विच विल कंबाइन टुगेदर, एंड देन दिस MCM और हेलिकेस इज गोइंग टू बी मेड. अब जब हेलिकेस बन जाता है, 6 प्रोटीन आती हैं, वो मिलके हेलिकेस बना देती हैं और डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कर देती हैं. तो फिर इन्होंने मूव भी करना है. जब मूवमेंट की बारी आएगी तो हेलिकेस की अटैचमेंट और फिर मूवमेंट के लिए जो है हमें एंजाइम चाहिए विच विल कॉज द प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन, एंड फॉर दैट पर्पस दिस CDC6. शायद आपने पहले कहीं पढ़ा हो बायोकेमिस्ट्री में या सेल बायोलॉजी में कि प्रोटीन जो है वो फंक्शनैलिटी उसकी होती है, या वो फॉस्फोरिलेट होने के बाद फंक्शन करती है या डीफॉस्फोरिलेट होने के बाद फंक्शन करती है. किसी किस्म की और बायोकेमिकल चेंज प्रोटीन में अगर आए तो प्रोटीन अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकती. ये एक चीज़ ज़हन में रखिएगा. ईदर द प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन आफ्टर फॉस्फोरिलेशन और डीफॉस्फोरिलेशन. और जब फॉस्फोरिलेशन करेंगे किसी प्रोटीन की तो हमें काइनेसिस की ज़रूरत पेश आएगी. So CDC6 is basically a protein or enzyme which is involved in phosphorylation. Then कल हमने बात की थी कि सिंगल स्ट्रैंड जब बन जाता है हेलिकेज एक्टिविटी के बाद, दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, उनके साथ सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन अटैच हो जाती है प्रोकैरियोट्स में. यहाँ पे यूकैरियोट्स में उन सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन का नाम RPA प्रोटीन्स हैं, which helps in maintaining the single stranded conformation as well as protect the DNA from the endonucleases. Then अब बात करेंगे प्रोटीन्स की which are responsible for attachment of enzymes with the single stranded DNA, the enzyme polymerases. हमने गैमा कॉम्प्लेक्स की या गैमा लोडर की बात की थी. यहाँ पे उस प्रोटीन का नाम RFC है.
RFC basically is responsible to help the PCNA. PCNA is equivalent to beta clamp. अब होगा क्या कि PCNA और polymerase delta and epsilon they make a complex together. Like अगर मैं diagrammatically draw करूँ so these are going to be together. अब इन दोनों को जो है DNA तक ले जाने के लिए RFC is going to come and it will support the attachment of these two proteins with the single-stranded DNA. Then comes the primase. As the name indicates, synthesis of primer. Polymerase alpha is present, which will help the primase to synthesize the primer and then keep on moving for 20 nucleotide addition. Then ओकाज़की फ्रैगमेंट इसमें भी बनते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए लाइगेज और रिपेयर एंजाइम जो है उसके लिए पॉलीमरेज 1 है, यहाँ पे FEN1 है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव द प्राइमर्स। अब आगे चल के इसको भी देखेंगे इसका क्या फंक्शन है। सो प्रोटीन्स का फंक्शन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फंक्शन सारे वही हैं बट नेम आर अ बिट डिफरेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन then you can ask, otherwise we'll move further towards the process. Okay, so now the next question which we have to address is cell cycle के दौरान how it is ensured कि DNA एक ही दफ़ा रेप्लिकेट हो। हमने बात कर ली रेप्लिकॉन्स होते हैं, उनमें जो है वो पॉइंट्स होते हैं, एपिजेनेटिक फैक्टर्स होते हैं विच कैन इनिशिएट दी रेप्लिकेशन। अब अगला क्वेश्चन ये है हु विल डिटरमिन कि एस फेज में अगर एक रेप्लिकॉन रेप्लिकेट कर गया है तो वो दोबारा से रेप्लिकेट ना करे। उसमें ये सारी प्रोटीन्स जो हैं दे आर गोइंग टू प्ले देयर रोल जिनकी अभी हमने बात की है। Now text पे मैं इतना focus नहीं करूँगा because text is what actually is happening in this diagram. This is the ARS sequence you can see, and this green colored is the ORC, that origin recognition complex, and to this ORC there comes MCM proteins। और अगर हम MCM proteins के number और name के हवाले से देखें there are 6 proteins which are going to be there and they are numbered named as MCM2, MCM3, MCM4, 5, 6 and 7। दो सेट आते हैं इनके MCM2 से MTM7 तक because replication has to proceed bidirectionally and they bind with the ORC in this fashion। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनकी अटैचमेंट के लिए वी हैव टू फॉस्फोरिलेट देम और उस फॉस्फोरिलेशन के लिए हमें ये CD6 और CDT1 एंजाइम्स की ज़रूरत पेश आती है। Once they are attached, the protein kinase CDK, they phosphorylate this pre-RC, that pre-RC indicates pre-replication complex। अगर आप देखें कि MCM प्रोटीन्स अभी सिर्फ अटैच हुई हैं, इन्होंने रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं की। That is the reason we call it as pre-replication complex or pre-RC। Once they get phosphorylated, then these helicases or these MCMs they start moving towards the opposite direction in both the directions, and you can see here that a replication bubble is produced where the next step would be entry of these enzymes for primer synthesis and then for replication। In the next step, if we move to the next slide over here, then इस पर्टिकुलर पिक्चर में इन्होंने एंजाइम्स की बात नहीं की, वो आगे चल के एंजाइम्स की बात आएगी। Once the replicon gets replicated and complete DNA it gets replicated, then these MCM proteins they get separated. They are no more available to bind with the ORC or to make up the pre-replication complex। Somebody asked something? Okay, so once the replication is completed, these MCM proteins they get dissociated and they are no more attached with the DNA।
आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। जी सर। ओके, देन वी टॉक जी, then we talk about the replication fork. अब क्या हुआ? ओके, so then we talk about the replication fork. अब यहाँ पे जो है वो सर ओकाज़ाकी जी सर ये जो MCM प्रोटीन्स हैं ये ORC के साथ बाइंड होती हैं? जी ये ये ORC कंपल्सरी के पहले ये बाइंड होती हैं? definitely because they are the helicase proteins. अगर ये bind नहीं करेंगी then they cannot perform the function of helicase. ओके। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं तो यहाँ पे है जी यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन फोर्क। यहाँ पे हम उन तमाम प्रोटीन्स की पोजीशनिंग देखेंगे, दैट हाउ दे गेट्स इनटू देयर position and how it is going to perform their function. So let's start from the base of the fork. If you can see this purple color flower shaped complex, this is the helicase protein. Helicase is responsible for unwinding of the DNA. अगर helicase के आगे देखें, there is topoisomerase. अगर आगे चलते चलते कहीं पे कोई सुपर कॉइल आता है तो topoisomerase उसको रिमूव करता है। एंड इफ़ वी लुक एट द लीडिंग स्ट्रैंड जो कि टॉप के ऊपर है हमारे पास, लीडिंग स्ट्रैंड में एक एंड के ऊपर जो है प्राइमर बना है एंड रेड कलर में द सिंथेसिस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड इज कॉन्टिन्यूस एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। और अगर यहाँ पे आप देखें PCNA विच इज़ बेसिकली अ सिमिलर इन फंक्शन टू beta clamp, then polymerase epsilon is attached with it, and then you can see that RFC in green in color, it is attached with this enzyme the single stranded DNA. So this is multi-proteins which are taking their position over here. हम दूसरे स्ट्रैंड पे आ जाइए, दैट इज द लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में प्राइमर RNA प्राइमर polymerase alpha is associated here, और उस polymerase alpha which is in orange in color उसके साथ प्राइमेस शो किया हुआ है ब्लू इन कलर में, छोटा सा डॉट है। देन देयर आर RPA द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। उसके आगे जो एक ऑलरेडी एक्सटेंड हो रहा है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, PCNA is attached and RFC and polymerase delta is associated with it. अब यहाँ पे दो, मैं अगर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की बात करूँ, नंबर 1 और नंबर 2, दोनों फ्रैगमेंट्स को लिंक करने के लिए यहाँ पे हमें कोई सेपरेट पॉलीमरेज की ज़रूरत पेश नहीं आती। कल जो हमने बात की थी उसमें ये बात हुई थी कि polymerase 1 will come here and polymerase 1 will remove the primer and polymerase 1 will link up the will fill up the gap between the Okazaki fragments, and then ligase will come and fill it up. In case of eukaryotes, polymerase delta has this activity to remove this green colored primer of Okazaki fragment number 1, और इसको रिमूव करने के लिए it needs an enzyme जिसको हम FEN का नाम देते हैं। This FEN is basically is an endonuclease. It is an endonuclease. It cuts the primer and it is going to remove it from the position. ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसको फिल करेगा गैमा पॉलीमरेज डेल्टा, और दोनों ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को फिर लिंक अप करने के लिए यहाँ पे लाइगेज मौजूद है। So this picture shows you that each and every protein present is performing its function. अभी एक क्वेश्चन हुआ था that how it is possible, why the Okazaki fragments और discontinuous जो है वो replication हो रही है lagging strand के ऊपर। Now look at this B picture on the same slide. देखिए हमने बात की थी replication होगी 5 to 3 डायरेक्शन में। If you people can look at the picture I am drawing here. So एक स्ट्रैंड जो है उसमें तो आपकी डायरेक्शन जो है वो क्लियर है कि रेप्लिकेशन
फर्दर मूव करता जा रहा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड अवेलेबल होता जा रहा है, और डॉटर स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड के साथ साथ बनता जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड जो लैगिंग स्ट्रैंड है, वहाँ पे जो डायरेक्शन है सिंथेसिस की, दैट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट, एज कम दैट विल मूव अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क जो सिंथेसिस है। दैट इज़ द रीज़न जितना डीएनए ओपन होता है उस पर्टिकुलर स्ट्रेच के साथ एक ओकाज़ा की फ्रेगमेंट बना दिया जाता है। फिर नेक्स्ट पार्ट उसको डीएनए स्ट्रैंड का ओपन हुआ लैगिंग स्ट्रैंड का, तो उसके साथ एक ओकाज़ा की फ्रेगमेंट बना दी। क्या अदरवाइज क्या होगा अगर हम इस तरीके से ना करें, टाइम ऑफ रेप्लिकेशन विल बी डबल, or error or chances of getting mutations or damage, it will be high, because you cannot keep the single stranded DNA for a longer time period. As we already spoke, single stranded DNA में हमारे nitrogenous species, they are exposed to multiple chemical reactions, and if any chemical reaction occur, they can be no more be the normal nitrogenous species, they are going to be the mutated nitrogenous species. So that is the reason immediately उस स्पेस को कवर करने के लिए जितना लैगिंग स्ट्रैंड एक्सपोज होता है एज ए सिंगल स्ट्रैंड, उसके साथ डबल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट बना दिया जाता है। एंड द सेम प्रिंसिपल कम्स ओवर हियर कि यहाँ पे जो रेप्लिसोम है या रेप्लिकेशन मशीनरी है, दैट functions together as a single unit, or movement of this machinery takes place in only in one direction, और उस वन डायरेक्शन में लैगिंग स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करने के लिए we do make another loop like a fold so that lagging strand can get replicated. Any question जी? This was about replication fork. सर जो हमारा ओरिजिनल डीएनए है उसके 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन, तो वही डिटरमिन करेगी ना कि कौन सा स्ट्रैंड लीडिंग होगा, कौन सा लैगिंग होगा। जी बिल्कुल, आपकी ये जो डायरेक्शंस हैं, अगर आप पेरेंट स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं उसकी डॉटर स्ट्रैंड, पेरेंट स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट स्ट्रैंड में आपका जो लीडिंग स्ट्रैंड है, the one which has अगर इसको मैं डिफाइन इस तरह से कर दूं कि when replication fork moves from 5 to 3 prime end, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप डायग्राम देखें, रेप्लिकेशन फोर्क ने इस डायरेक्शन में मूव करना है, नीचे वाला 5 प्राइम एंड है पेरेंटल स्ट्रैंड का ऊपर, और ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है दैट इज 3 प्राइम एंड। अब इन दोनों में से आप बता सकते हैं, जो डायग्राम मैंने अभी स्केच की है, which one is going to be the leading strand and which one is going to be the lagging strand. If you are looking at the नीचे वाला लीडिंग presentation. होगा, ऊपर वाला लैगिंग। नहीं, नीचे वाला लैगिंग होगा, ऊपर वाला लीडिंग होगा। क्यों? लुक एट दिस ब्लू कलर्ड लाइंस नाउ। देखें, नहीं। रेप्लिकेशन जब होनी है तो डायरेक्शन जी ऊपर वाला लीडिंग जी ऊपर वाला होगा लीडिंग, ना, ऊपर वाला लीडिंग है। 5 वाला। लुक नो वेट, जब हम डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। सो ऊपर वाले स्ट्रैंड के साथ जब डॉटर स्ट्रैंड बनेगा तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, बिकॉज रेप्लिकेशन फोर्क की मूवमेंट देखें आप, लेफ्ट से राइट है, जैसे जैसे डीएनए ओपन होता जाएगा लेफ्ट से राइट तक जो है वो बनता जाएगा डीएनए स्ट्रैंड, डॉटर स्ट्रैंड। तो ऊपर वाला जो है स्ट्रैंड वो एक्ट एज लीडिंग स्ट्रैंड, whereas the strand which is below it will act as the lagging strand. हाँ, अगर आप Sir, मैं can इसको can we say that the replication fork की तरफ जो होता है स्ट्रैंड वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है और जो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है? नहीं, हम जो है ना ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन सा वे है कौन सा टूवर्ड्स है।
आप रेप्लिकेशन फोक की मूवमेंट की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अगर रेप्लिकेशन फोक मूव कर रहा है ना फ्रॉम जिस स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ मूव कर रहा है, दैट स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी द लैगिंग स्ट्रैंड, द अदर स्ट्रैंड इज गोइंग टू बी द लीडिंग स्ट्रैंड। अब अगर इसी पिक्चर में मैं सिर्फ डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन फोक चेंज कर दूं, ब्लू कलर की इस साइड से कर दूं, देन एंटायर स्टोरी इज गोइंग टू चेंज। अब ऊपर वाला जो है वो लैगिंग बन जाएगा, नीचे वाला लीडिंग बन जाएगा। So you can say when a replication fork moves from 5 prime to 3 prime direction of one of the strand is the lagging strand, or opposite strand is going to be the leading strand. इसको ड्रॉ करके देखिएगा, नहीं क्लियर होगा देन वी विल टॉक अबाउट इट वंस अगेन। सर जो प्राइमर है वो जब लगता है डीएनए पे आके उसके बाद उसको रिमूव किया जाता है ताकि जी। ओकाज़की फ्रेगमेंट में जुड़ जाए। तो जो प्राइमर ने न्यूक्लियोटाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री लिए हैं वो जाया नहीं हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे फिर? डेफिनेटली दे विल बी रिसाइकल्ड। जाया नहीं होते, दे विल बी रिसाइकल्ड बिकॉज नहीं सेल नहीं चेन। सर, मैं असल में ये बात कर रही हूँ जो डीएनए के ऊपर मैसेज है वो कॉम्प्लीमेंट्री ले लिया है प्राइमर ने वहां पे अटैच होना है ना, तो उसने वो कॉम्प्लीमेंट्री लेने हैं, तो उसके बाद वो प्राइमर को हटा दिया जाएगा और ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होंगे वो आपस में ज्वाइन करेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट प्राइमर ने लिए वो जो मैसेज है वो कहाँ कोड होगा? मतलब वो उसको आप इस तरह से देख लीजिए। मैं यहाँ पे लेट्स से दिस इज वन ओकाज़की फ्रैगमेंट, दिस इज सेकंड ओकाज़की फ्रैगमेंट, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। यहाँ पे लेट्स सपोज एक ए है, यहाँ पे एक जी है। हमने यहाँ पे जो मौजूद था प्राइमर उसको रिमूव कर दिया। अब इस ओकाज़की फ्रैगमेंट को एक्सटेंड किया जाएगा, यहाँ पे टी ऐड किया जाएगा, यहाँ पे सी ऐड किया जाएगा और फिर इनको लिंक कर दिया जाएगा। नॉर्मली इन विवो 7 to 8 7 to 10 जो है न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर होता है। अब डिफरेंस क्या है, पहले जो प्राइमर मौजूद था और हमने ये जो फिलिंग की है, आरएनए ऑलवेज कंटेन यूरेसिल इन प्लेस ऑफ थायमिन। अगर हम प्राइमर को रिमूव नहीं करते देन वी आर गोइंग टू हैव यूरेसिल इन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल। So that is the reason when the primers are there, when they perform their function, we have to remove it because of their chemical nature. Okay, so this is the replication fork. Now there is the next simple point, experimental evidence जो है वो शो किया हुआ है कि अब अगर हम न्यूक्लियस के हवाले से सोचें दैट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देयर इज अ डिफाइंड न्यूक्लियस, सो वेयर एक्चुअली रेप्लिकेशन इज हैपनिंग एट एनी गिवन टाइम। अगर हम कहें एस फेज स्टार्ट हुई है तो वेयर विच पार्ट, राइट पार्ट, लेफ्ट पार्ट, सर्कुलर न्यूक्लियस है तो उसके किस पोर्शन में जो है रेप्लिकेशन हो रही है। एक्सपेरिमेंटली पहले हमने बात कर लिया एट एनी टाइम कितने रेप्लिकॉन्स, कितने परसेंट रेप्लिकॉन एक्टिव होंगे। अगर नंबर के हवाले से बात करें तो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फोक के हवाले से बात करें वो भी डिटरमिन की जा सकती है। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट हैव शोन दैट देयर आर एट एनी गिवन पॉइंट 50 to 250 sites within the nucleus where the replication forks are made and the DNA gets replicating. Now these red dots in this picture, these red dots basically they are the points where replication is ongoing and replication forks are made. And each single red dot it shows 10 to 100 replication forks. अगर मैं इस particular point को highlight करूँ, it is the result of 10 to 100 replication forks. This is just to show you that the replication starts at random. The replication is going to happen in multiple points at the same time. 10 to 15% of the replicons they will be replicating at any given time, or there is no फिक्स पॉइंट इन द न्यूक्लियस जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और किसी गिवन डिज़ाइन में या गिवन फैशन में प्रोसीड होगी। सो दिस इज द पॉइंट्स, these red points
these are basically referred as replication loci. हम इनको जो है सॉरी फोसाई, हम इनको इस तरह से कर सकते हैं, रेप्लिकेशन फोकस जहाँ पे की है एट एनी गिवन टाइम और मल्टीपल हो तो उनको फोसाई कहा जाता है. नेक्स्ट डिफरेंस दैट कम्स, ये आपने, जो डायग्राम दिखाई है ये रेड कलर में, एक सेल में बात की जा रही है, एक सेल पे? के एक न्यूक्लियस में, एक सेल के एक न्यूक्लियस में. जी जी सर. ठीक है. अब एक नया प्रॉब्लम है जो कि कल हमने नहीं. सर जी सर वो रेप्लिकेशन तो तब स्टार्ट होगी जब एपिजेनिक फैक्टर्स को भी हम मद्देनजर रखेंगे ना इसमें. जी जी. एपिजेनेटिक उसका फैक्टर यहाँ पे नहीं ना बताया. नहीं, एपिजेनेटिक जी सर. एपिजेनेटिक फैक्टर्स में आप उनको किस तरह मद्देनजर रखना चाह रहे हैं? एक एपिजेनेटिक फैक्टर तो मैंने समराइज कर दिया ना. एक सेकंड, एक एपिजेनेटिक फैक्टर तो मैंने इस तरह से क्लियर कर दिया ना कि यूक्रोमेटिक रीजन विल रेप्लिकेट फर्स्ट एज कंपेयर टू हेट्रोक्रोमेटिक रीजन. अब अगर इसको मैं एलेबोरेट करूँ ना, number one, euchromatic region is the region which is loosely bound with the nucleosomes. So this is one epigenetic factor. कि वो डीएनए जो लूजली बाउंड है विद न्यूक्लियोसोम्स वो पहले रेप्लिकेट होगा, जो टाइटली बाउंड है वो बाद में रेप्लिकेट होगा. फिर मैं इसके साथ बात कर देता हूँ कि जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, जो फ्रीक्वेंटली जो है वो कंडेंस और डीकंडेंस होता है, दैट पार्ट इज गोइंग टू रेप्लिकेट फर्स्ट एज कंपेयर टू दी वन विच इज़, वो मैंने जब कंडेंस्ड का वर्ड यूज़ किया है ना तो उसमें हर चीज़ इसमें शामिल हो गई है. ठीक है जी सर, मतलब सारे फैक्टर्स वो वाले आएंगे. सारे फैक्टर उसमें आ जाएंगे. जी. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट जो यूकैरियोट्स में मौजूद है और प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं है, दैट इज़ द प्रॉब्लम कि यूकैरियोटिक डीएनए इज टाइटली पैक्ड डीएनए विद द न्यूक्लियोसोम्स, हिस्टोन और टेलोमेयर्स. अब सवाल ये है, जब रेप्लिकेशन होती है तो एट व्हाट टाइम DNA gets unwound or separate from the nucleosomes, and when it gets back to the nucleosomes. Number one question. Number two question, जो nucleosomes हैं they are again made up of different histone proteins. आया वो हिस्टोन भी जो हैं स्प्लिट होती हैं या वो एज इट इज़ इन कांटेक्ट रहती हैं और सिर्फ न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो निकलते हैं और जाके अटैच हो जाते हैं. नंबर थ्री क्वेश्चन, पहले हम सपोज कर लें पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल में लेट्स सपोज 100 न्यूक्लियोसोम्स मौजूद थे. अब एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल बन रहे हैं. will there be 100 nucleosomes which are going to be distributed among two daughter molecules, or there will be new nucleosomes coming up? So the findings are, number one, there will be parental nucleosomes as well as there will be newly synthesized nucleosomes. They will be made available to get attached with the DNA. Number two, when the DNA has to replicate, nucleosome will get separated from the DNA. It is not only the nucleosome which will be separated, the histone proteins, they will also be separated from each other. There will be histone proteins from the parental DNA, there will be the histone proteins from newly synthesized histone proteins. So these newly synthesized histone proteins as well as the parental histone proteins, they are going to mix up at random and they are going to make up the new nucleosome, and there will be an uneven distribution. कोई पैटर्न नहीं है, एक random distribution होगी और जो nucleosomes हैं they will be distributed to the two daughter strands. Now this is a picture which I want to show you in big or magnified form. So if I only focus on the this big one nucleosome, you can see here the green colored round है एक या ring है. This green color ring is made up of a tetramer of H3 and H4 protein. इस green color के tetramer के left side के ऊपर एक छोटा सा ball like structure है. This is made up by H2A and H2B.
डाइमर है और इसी तरह राइट साइड के ऊपर एक डाइमर है H2A H2B। अगर हम कलर कोडिंग के लिहाज से राइट साइड वाली पिक्चर देखें, we can see there is a red ball representing H2A H2B. We can assume this is newly synthesized. On the other side of the same nucleosome, we can see this is the parental blue colored H2A H2B, और ये जो येलो और ब्लू रिंग के दरमियान रेड कलर की शीट नज़र आ रही है, these are newly synthesized H3 H4 proteins. Now if we look at the next nucleosome number 2, यहाँ पे entirely different story है। नंबर 3 पे जाइए, H3 H4 entirely different story है। The blue color, this is the parental one, the red color is the newly synthesized histone proteins. The point to make it here is that when nucleosome gets separate from the DNA, the histone proteins they get dissociated, or they get separated from each other. They are the older histones, then there are some new histones. They are going to distribute, or they are going to combine at random, and they are going to make the new nucleosomes which will be distributed to the DNA at random. So यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। Okay. Nobody is speaking, that means no question. अभी मैंने अटेंडेंस का कहा नहीं है, सब ने अटेंडेंस भेजनी शुरू कर दी। खैरियत है? आप में से कोई लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। सर वो शायद स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि 1 घंटे की क्लास थी तो 5 बज गए हैं, तो इसलिए शायद बच्चे अटेंडेंस भेज रहे हैं। Okay. So if you don't have any other class, we can complete this topic. Otherwise इसको फिर हमें मंडे तक लेके जाना पड़ेगा, because अभी हमने टीलोमियर्स की बात बिल्कुल भी नहीं की। नहीं सर, हमारी कोई क्लास नहीं है अभी। सर अभी तो हमारी तो क्लास कोई भी नहीं है। क्लास नहीं है, इवनिंग वालों की शायद हो। इवनिंग की कोई क्लास नहीं इवनिंग है। वालों They की भी are कोई having जी they are having वालों की नहीं है। इवनिंग वालों की 2 घंटे की क्लास अभी मेरे साथ है इस वक्त, इसलिए मैंने ये टाइम रखा था। जी सर, तो मॉर्निंग वालों की अभी कोई क्लास नहीं है। I think then I will take next 15 to 20 minutes to complete this topic, because हमने मेजर सेगमेंट कंप्लीट कर लिया है, ओनली लास्ट कंपोनेंट रह गया है, उसके हवाले से फिर बात करते हैं। जी प्रोकैरियोट्स में यू नो देयर इज सर्कुलर डीएनए, तो वहाँ पे ये टीलोमियर्स का प्रॉब्लम नहीं आता। यूकैरियोट्स में टीलोमियर्स का प्रॉब्लम बनता है। अब टीलोमियर्स हैं क्या? एज यू नो दैट एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, they are referred as telomeres, and we know that in case of eukaryotes double-stranded DNA is a linear molecule. यहाँ तक तो बात क्लियर है। फिर हम जब टीलोमियर्स की डेफिनेशन करते हैं, we say if you remove the telomeres, क्रोमोसोम के एंड्स स्टिकी बन जाते हैं and chromosome behaves abnormally. So the problem, what is the problem with the telomere and telomere replication or end replication? बात करने से पहले आई वांट कि आप ये राइट साइड के ऊपर जो पैनल में पिक्चर है इसको देखें। देयर आर 2 डिफरेंट स्टेनिंग्स। एक स्टेनिंग जो है वो क्रोमोसोम को रेड स्टेन कर रही है, और इसके एजेस के ऊपर येलो कलर के आपको 2 डॉट्स विजिबल हैं। दीज 2 डॉट्स आर बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन और लेबलिंग ऑफ द टीलोमियर्स। कैसे लेबल होते हैं? बिकॉज टीलोमियर्स में एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है विच इज़ रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स फ्रॉम 500 to 5000 टाइम्स। अगर आप इनके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लेके उनको फ्लोरेसेंट टैग लगा के इनके साथ अटैच करें इन सीक्वेंसेस के साथ, देन यू कैन सी दिस येलो कलर। दिस इज़ एक्चुअली व्हाट हैपेंड हियर, और इस जो प्रोसीजर है इसको हम in situ हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और एट द सेम टाइम वी यूज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स। ये लोअर पैनल में अगर आप देखें, ब्लू कलर के क्रोमोसोम हैं, देयर एजेस हैव थिक green color or yellowish green colored cover or coating that indicates that these are the proteins which are present. So telomeres have 2 kind of properties. Number 1, they have specific nucleotide sequence, short sequence which is repeated multiple times,
and then there are possibilities that different proteins can attach and can cover the telomeres, which we have seen practically in the experimental findings. When the DNA replication starts, now look at the picture on the right panel. जब हम कहते हैं रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, प्राइमर आके लगा, ये ग्रीन कलर में मैंने प्राइमर शो कर रहा हूँ यहाँ पे, वेट अ सेकेंड, ग्रीन कलर में जो प्राइमर शो कर रहा हूँ ये आके बाइंड किया यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो स्टार्ट हो गई इसकी रेप्लिकेशन, एंड वी सी हियर रेड कलर में डॉटर स्ट्रैंड एक बना, रेड कलर में डॉटर स्ट्रैंड दूसरा बन गया. देन वंस द रेप्लिकेशन इज कंप्लीट, अभी हमने जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स की बात की थी उसमें हमने देखा कि जो प्राइमर्स मौजूद हैं दे आर रिमूव्ड बाय द पॉलीमरेज, और जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को लिंक कर दिया गया सिवाय दो प्राइमर्स के. और वो दो प्राइमर्स कौन से हैं? दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर विच आर प्रेजेंट एट 5 प्राइम एंड. इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, मैंने इनको एनसर्कल किया है ब्लू में. दीज टू प्राइमर्स आर ऑल्सो रिमूव्ड. जब इन दोनों प्राइमर्स को रिमूव किया जाता है तो you can see here that there comes a gap. So this is the end replication problem, कि हमारे पास जैसे जैसे हम प्रोसीड करते हैं रेप्लिकेशन को, क्रोमोसोम के एंड्स जो हैं वो शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और इन अदर वर्ड्स क्रोमोसोम के टीलोमियर्स शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं. अब अगर इसको हम देखें पेरेंटल स्ट्रैंड को, सिर्फ पेरेंटल स्ट्रैंड को, रेड कलर स्ट्रैंड को छोड़ दीजिए, पेरेंटल स्ट्रैंड को यहाँ पे देखें, दिस 5 प्राइम एंड, दिस हैज़ बीन डिसअपीयर्ड फ्रॉम हियर. रीज़न कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होती है, some proteins which are interacting with the 5 prime end, they take a part of the nucleotides from parental strand. Ultimately parental strand के ऊपर एक कंडीशन बन जाती है कि its length gets shorter as compared to daughter strand. अब दोनों साइड के ऊपर अगर हम देखें, there is present 3 prime overhang, parental strand के ऊपर भी है और यहाँ पे daughter strand के ऊपर ही है. अब single stranded chromosomes cannot stay within the cell. There are two options. या तो ये गैप को फिल कर दिया जाए जो कि यहाँ पे प्राइमर रिमूवर की वजह से रह गया है, या फिर इस सिंगल स्ट्रैंड को हम फिक्स कर दें. Within the cells what actually happens that this single stranded DNA it makes up a loop. अब अगर इस पिक्चर को हम गौर से देखें what actually is happening, कि ये पर्टिकुलर ब्लू कलर का जो है पेरेंटल स्ट्रैंड है जिसने एक लूप बनाया है, ये रेड कलर का जो है ये डॉटर स्ट्रैंड है जिसने लूप बनाया है. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड, जहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, दिस पॉइंट ऑनवर्ड दिस इज़ द ओवरहैंग. अब इस ओवरहैंग ने क्या किया है, एक लूप बनाने के बाद जाके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों स्ट्रैंड्स को डिसोसिएट किया है. अपना जो सिंगल स्ट्रैंडेड सेगमेंट है उसको पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ बेस पेयर किया है और एक लूप लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है. दिस इज़ वन मेथड by which these overhangs they protect themselves, they tuck themselves in the double stranded DNA. Normally what happens, or in other way what actually is going to happen, that in 1984 two scientists they discovered an enzyme which is referred as telomerase, and then they studied this telomerase enzyme and they figured out that there exists a mechanism in which once the replication is completed the telomeres are replicated also, or the end replication problem is resolved. How it is resolved? If we look at this picture, the upper strand is daughter strand, the lower strand is the parental strand, and you can see this particular segment that is an overhang. What is happening? This is a telomerase, which is a reverse transcriptase enzyme having a protein portion
and an RNA portion. This RNA has complementary sequence that can bind with this single-stranded overhang. When this telomerase comes, it binds with this overhang, and it has now two functions to perform, which are very unique. Number one, this telomerase extend the overhang portion by adding new nucleotides. जो सेगमेंट पहले से प्रोलॉन्ग था उसमें कुछ और न्यूक्लियोटाइड इसने ऐड किए और उस ओवरहैंग को इसने एक्सटेंड कर दिया in this form. Then this telomerase, which was actually binding with the sequence of the DNA, it shifts its position to the newly added nucleotides so that complete gap can be filled up. अगर ये सेकेंड स्टेप पे आएगा, बाइंड करेगा और गैप को फिल करेगा, and when it leaves again there will be some single-stranded overhang. So in order to complete the replication of telomerase पहले अपने attachment के लिए जगह बनाता है by adding the new nucleotides, which is never part of the DNA or single-stranded DNA, double-stranded DNA. Then it switches its position, move to the newly added sequence, and then it fills up this gap. And this polymerization is done by telomerase because it has the polymerization activity. Now keep in mind यहाँ पे प्राइमर मौजूद था और एंजाइम्स जो हैं they can only polymerize the nucleotides by adding them on 3' hydroxyl group. यहाँ पे गैप फिल करने के लिए where from this hydroxyl group comes, that hydroxyl group is offered by the RNA segment of the telomere. By this way, the telomeres are replicated. Any questions? सर जो टीलोमेरेज पे फिर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है वो डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ही होता है? Yes, कॉम्प्लीमेंट्री ही है. अगर आप देखें तो जो टीलोमेरेज का आरएनए है that has a complementary sequence with that short sequence which is part of the DNA. तो वो सर वही टीलोमेरेज होगा, वो स्पेसिफिक होगा ना उस डीएनए के सीक्वेंस के लिए, कि Yes. सारे डीएनए पे तो वही सीक्वेंस नहीं ना होगा? नहीं, कीप इन माइंड वन थिंग, ये चीज़ शायद मैं स्किप कर गया हूँ कि जो टीलोमेरेज है ना दैट कंटेन्स ए स्पेसिफिक सीक्वेंस, उसका मैंने आपको बताया TTGGG, and the same sequence is present in all the telomeres of all the vertebrates and eukaryotes. That indicates that telomeres are conserved during the course of evolution, and this telomerase is meant to protect the ends of the DNA. So we cannot say कि mammals में अलग telomerase का sequence है, telomeres का sequence है, fishes में अलग है. No, this is not like that. सर जब टीलोमेर अपने आप को रेप्लिकेट कर लेंगे ये न्यू मतलब के, तो बाद में ये डॉटर डीएनए के साथ दोबारा बाइंड कर देंगे ताकि वो इक्वल लेंथ हो जाए दोनों की. जी, थोड़ा सा इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लीजिए कि टीलोमेयर ने पहले अपने अटैचमेंट की जगह बनाई बाय एडिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड टू द पेरेंटल स्ट्रैंड, और उसके बाद उसने जो गैप है, जो डॉटर स्ट्रैंड का गैप है, मिसिंग गैप, उसको पॉलीमराइज करके फिल कर दिया. They are not going to make any fragment separately. They are not going to make any fragment separately. ये वहीं पे बाइंड करके कॉम्प्लीमेंटरिटी की बेस, पेयरिंग की बेस के ऊपर उस गैप को यहाँ पे फिल करेंगे. ठीक है? ओके सर. अब इसका पर्पस क्या तो है? सर फिर डॉटर जो था पेरेंट स्टैंड कैसे शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो तो इसके इक्वल ही हो जाएगा फिर. अब इक्वल हो गया ना, अब इक्वल हो गया. ठीक है, तो वो पीछे इक्वल हमने देखा होगा. वो शॉर्ट हो जाता है. आफ्टर टीलोमेरेज एक्शन इट बिकम्स इक्वल. ठीक है, पीछे जो हमने देखा है जी जी. दिस वाज बिफोर टीलोमेरेज एक्शन. ठीक है, when telomerase thank you for comes clarifying. performs its function, then it is going to complete. Now what is the role of telomeres actually? आपने एक टर्म सुनी हुई है एजिंग की. telomere is basically responsible for aging.
अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि फ्रॉम योर स्किन सम सेल्स आर टेकन और उनको मैं इन विट्रो कल्चर करता हूं, डू यू थिंक द सेल्स विल कीप ऑन पासिंग थ्रू माइटोसिस without any stop, or there will be a time cell division will no more be possible? So the answer is eukaryotic cells, normal somatic cells, they can replicate as much as for 80 cycles. After that they stop dividing. उनमें सेल डिवीजन नहीं हो सकती. उसकी रीज़न क्या है? इफ़ यू लुक एट दिस पिक्चर, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, और वी कैन से जो ह्यूमन बॉडी के सेल्स हैं, normally they don't have telomerase enzyme. So ultimately what is going to happen after every cycle of replication, उनका जो टीलोमेयर है उसकी लेंथ माइनर कम होती जाती है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि डीएनए कैन नॉट रेप्लिकेट बिकॉज उसका टीलोमेयर बहुत ही शॉर्ट हो चुका होता है. इस स्टेज को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट हेफ्लिक्स ने, और इस लिमिट को कहते हैं हेफ्लिक्स लिमिट. Hayflick's limit is a limit when after multiple replication cycles that length of telomere goes to such an extent that further replication is no more possible, and this Excuse me, happens sir. after जी. सर लेकिन ये टीलोमरेज आके इसको टीलोमेर की उसकी लेंथ को वो भी तो करता है, इंक्रीज मैं एक्सटेंड तो करता है. लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं ना, तो हमारे पास दो किस्म की सेल, बल्कि तीन किस्म की सेल पॉपुलेशन होती हैं. नंबर 1 सोमेटिक सेल्स, नंबर 2 जर्म सेल्स, नंबर 3 स्टेम सेल्स. और अगर हम डिजीज कंडीशन की बात करें, नंबर 4 कैंसर सेल्स. telomerase is present and functional in cancer cells, in germ cells, and in stem cells. Telomerase enzyme is not present or functional in somatic cells. ये चीज़ clear कर दो. This is the reason that human goes to aging process. अगर human cells they have the telomerase as an enzyme, तो उनके क्रोमोसोम्स में टीलोमियर्स की लेंथ कभी भी कम नहीं होगी, and chromosome will behave as it was at the time of birth. अब क्लियर हो गया पॉइंट? हमने बात Yes, सारी sir. करनी है और उसके सर बाद हमने बताना है. जी. सर ये बट वाली आपने बात क्या की है, मैंने बताइए ये मेरे बात को. की है कि अगर ह्यूमन सोमैटिक सेल्स में टीलोमेरेज एंजाइम फंक्शनल और प्रेजेंट हो, देन उसके जो हर साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन के बाद उसके टीलोमियर जो हैं उनकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी. जब उनकी लेंथ शॉर्ट नहीं होगी तो उनके क्रोमोसोम विल बी एज लाइक एज एट द टाइम ऑफ बर्थ. 60 साल के बाद, 60 साल की एज है, 70 साल की एज भी हो जाएगी, तो क्रोमोसोम विल बी एग्जैक्टली लाइक इट वाज एट द टाइम ऑफ बर्थ. लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता. सोमैटिक सेल में टीलोमेरेज एंजाइम इज नॉन फंक्शनल. विद द पैसेज ऑफ टाइम जो टीलोमेर्स की लेंथ है वो शॉर्ट होती रहती है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग. कौन से सेल्स हैं जिनमें टीलोमेरेज प्रेजेंट होता है और एक्टिव होता है? इज इन द कैंसर सेल्स, इज इन द स्टेम सेल, इट इज इन the germ cells, because the germ cells have to go to make the new organisms. So वहाँ पे telomeres they are going to remain as long as they should be. Then अभी हमने जैसे बात की कि telomerase is present in cancer cells, तो telomerase को अगर आप कंट्रोल कर लें, then you can control the cancer. So the point next and the last point to make here is that there is some therapy in practice which controls the telomerase enzymes in the cancer cell in combination with the therapies to control the tumor.
If you look in this picture, the left panel shows only chemotherapy, the right panel shows the chemotherapy as well as the telomerase inhibitors, telomerase inhibitors. Now अगर आपने telomerase inhibitor को यूज़ किया, telomerase enzyme को inhibit कर दिया, then after every cycle of replication टीलोमेयर की लेंथ शॉर्ट होती जाएगी, और अभी मैंने बात की 50 से 80 सेल डिवीजन साइकिल के बाद सेल विल नॉट बी रेप्लिकेटिंग अगेन। अगर आप सिर्फ कीमोथेरेपी देते हैं, क्रोमोसोम का साइज देखिए, उसमें टीलोमेयर की लेंथ है 7 किलो बेसिस। सेम हियर, कीमोथेरेपी के बाद सेलुलर पॉपुलेशन की तो कंट्रोल हो रही है, बट द टीलोमेयर इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऑन द अदर हैंड, कॉम्बिनेशन थेरेपी की कीमोथेरेपी दें प्लस टीलोमेरेज को इनहिबिट करें, then you can see that after some time the 7 kilobases telomere length has been shorter to 5 kilobases, has been shorter to 3 kilobases, has been shorter to 2 kilobases, and that is not possible to make the replication cycle goes on. The chromosomes have reached the Hayflick's limit, and they will no more be dividing, the cancer will no more be growing. So this is all about replication in eukaryotes.